Good morning, everybody. This is our second lecture. In first lecture, we have seen basic concept in chemistry. What is meant by chemistry? What are the branches of chemistry? And regarding the some other basic concepts. Now, next part is आज जो अपने को पढ़ना है that is atom, right? Not item, it's atom. What is meant by atom? So actually, British scientist John Dalton. Which one? John Dalton, who 18th century, 1809, he observed that atmosphere consists of small, dense and individual particles. They are not visible by naked eyes as well as under ultra microscope. You can imagine the size of these particles. They are very nano-sized particles. So these particles, they are small, dense and individual particles present in an atmosphere. They are called as the atoms. Yes, so this is the definition of atom. What is meant by atom? So atoms are small, dense and individual particles present in an atmosphere. Now atom consists of two main regions, two main parts. Atom divided into two parts, central part which is called as nucleus, and another extracentral part which is called as the orbit. Yes, so this is central part which is called as the nucleus, this one, and this is the extracentral part which is called as orbit. दो पार्ट में एटम को मेनली डिवाइड किया जाता है, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट. So central part which is called as nucleus and extracentral part which is called as orbit. Now atom consists of three fundamental particles. There are many particles present in an atom, as much as 52 particles, but out of that only 3 particles are called as fundamental particles, basic particles, fundamental particles, and those are protons, electrons and neutrons. These three are the fundamental particles of atom: protons, electrons and neutrons. Out of that, 2 fundamental particles are present in the nucleus of an atom, and these 2 fundamental particles are protons and neutrons, right? Protons and neutrons, they are present in the nucleus of an atom. Protons are positively charged particles, while neutrons, no, they are not negatively charged. They are neutral in nature. They do not have any kind of charge. So protons, they are positively charged particles, but neutrons, they are neutral in nature. Both of them present in the nucleus, and collectively they are called as nucleons. Collectively, दोनों को साथ में अपन क्या बोल सकते हैं? Nucleons. That means nucleus consists of nucleons. Nucleus consists of nucleons. Nucleons means protons and neutrons. So out of 3 fundamental particles, 2 fundamental particles, namely protons and neutrons, they are present in the nucleus, while third fundamental particle called as electron. Which one? Electron. And these electrons are revolving around the nucleus in an orbit, revolving around the nucleus with a very high velocity along that nucleus, and this is called as orbit. Orbit को ही बोला जाता है shell. Orbit or shell. That means electrons are revolving. Electrons are revolving around the nucleus with a very high velocity, and electrons have less mass as compared to protons and neutrons. Very negligible mass. Then protons which are present in the nucleus and having positive charge. Protons were discovered by the scientist Goldstein in 1886. गोल्डस्टाइन, पूरा क्रेडिट जो जाता है प्रोटॉन की डिस्कवरी का, दैट इज गोल्डस्टाइन. सेकंड वन, इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. yes, electrons were discovered by J Thomson in 1897. And finally, after 35 years later, neutrons were discovered because they do not have any kind of charge. So neutrons, they are discovered by the James Chadwick in 1932. That means these 3 fundamental particles present in the atom. Out of that, 2 fundamental particles, namely protons and neutrons, which are collectively called as nucleons, they are present in the nucleus. मतलब nucleus में क्या है तो nucleons, और ऑर्बिट में क्या घूम रहे तो इलेक्ट्रॉन्स. दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द
nucleus with a very high velocity. So now ये जो है this orbit, there are different type of orbit or shell. जैसे ये एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, अब नंबर ऑफ शेल्स आर देयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा. जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे. सो डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर एज वेल एज नंबर ऑफ शेल साइज. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग नील बोर्स फॉर्मूला. कौन से शेल में, कौन से ऑर्बिट में, शेल को ही बोला जाता है ऑर्बिट. शेल के अंदर और आगे पढ़ेंगे अपन सब शेल रहते हैं, या फिर ऑर्बिट अगर बोल रहे हैं तो ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल. मेन शेल तुमने शायद पढ़ा होगा, देयर आर के, एल, एम एंड एन, दे आर मेन शेल्स, राइट. सो के, एल, एम, एन, दे आर द मेन शेल. फर्स्ट शेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. Why 2 electrons present? There is a Neal-Bohr formula. Neal-Bohr's formula, and formula is 2n square, which electrons in an orbit can be calculated by Neal-Bohr's formula, and that formula equals to 2n square, where n means number of shell. कि कौन से नंबर की वो शेल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी होंगी, that can be calculated by formula 2n square. सपोज फर्स्ट शेल में अपन इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट शेल. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो n मतलब आएगा 1. n मींस 1. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1. सो बाय फार्मूला 2n स्क्वायर, नाउ n इज इक्वल्स टू 1. 2 into 1 square, 1 square is 1, 1 into 2 2. That means first shell consists of 2 electrons, and that's why it is called as duplet. Which one? Duplet. Duplet means consist of 2 electron. Now for second shell, ये जो है अभी second shell, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? This can be calculated again by same formula 2 into n square. Now value of n becomes 2. Yes. So n is equals to 2. 2 into 2 square, 2 square 4, 4 into 2. That means 8. And when 8 electrons present, that is called as octet. It is called as octet. Now next third shell के लिए number of electrons in third shell. So value of n becomes 3. 2 into 3 square, 3 square 9, 9 into 2, that means 18 electrons. So first shell में कितने आ गए? 2, second में 8, third में 18. Now fourth shell, n is equals to 4. Again same formula 2 into n square. n means number of shell. For fourth shell, value of n becomes 4. Therefore, 2 into 4 square, that means 4 square 16. 16 into 2 32. That means sequence देखो कैसा आएगा. First shell 2, 8, 18, 32, etc. Fifth shell के अगर निकालने हैं, बताओ कितने होंगे? 4 तक तो अपन ने यहाँ पर निकाल लिए. Fifth shell के निकालना है तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25. 25 into 2, that means 50. So this way we can find out the number of electron present in any shell. So this is the main number of electrons present in an different orbit. Now there is a one famous rule which is called as octet rule. Which one? Octet rule. What is mean by octet rule? So octet rule क्या बताता है? Every atom tried to achieve stability by occupying 8 electrons in its valence shell. Outermost shell is called as valence shell. जो बाहर की शेल रहती है, जो outermost shell है, that is called as valence shell. Suppose ये लिथियम का लेता हूं मैं. लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3. सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस 3 इलेक्ट्रॉन्स है. 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 3. फर्स्ट शेल में कितने चाहिए अपने को? 2 इलेक्ट्रॉन. सेकंड शेल में कितने चाहिए? 8. पर 8 है क्या इसके पास? नहीं है. बचा है कितना? 1. अब ये होगी इसकी वैलेंस शेल. विच शेल? वैलेंस शेल. दैट मींस outermost shell of an atom is called as valence shell. And suppose that valence shell contains 8 electrons, then it becomes stable. Just like the inert gases, noble gases, neon, argon, krypton, xenon and radon, all of them contain 8 electrons in their outermost shell. They are more stable, and every element try to achieve stability like them, and therefore
criteria for octet rule, they must contain 8 electrons. How many electrons? 8 electron. अब देखते हैं एटॉमिक नंबर वाइज किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. पहला देखो हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट, सबसे गरीब एलिमेंट, इनफैक्ट भिखारी जिसको बोल सकते हैं अपन, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. इसके डुप्लेट के भी 1 दे हैं, इसका डुप्लेट तक कंप्लीट नहीं है. फर्स्ट शेल में कितनी रिक्वायरमेंट है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स डुप्लेट, बट हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. डुप्लेट कंप्लीट है क्या इसका? नहीं है. इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब डुप्लेट भी पूरा कंप्लीट नहीं है. डुप्लेट के 1 दे हाइड्रोजन के हैं, इसके बाद में ऐसा किसी के पास नहीं है. एटलीस्ट एवरी एटम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल. जैसे हीलियम देखो, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 मतलब क्या कंप्लीट है उसका? डुप्लेट. सो दैट मींस हीलियम इज स्टेबल. ये स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है. 2, 8, 18 एक्सेट्रा. उसमें भी सबसे ज्यादा वाला कौन सा रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन मिलना मुश्किल है सबके पास. एटॉमिक साइज अगर बड़ी है तो ठीक है, अदरवाइज छोटे एलिमेंट्स के लिए 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में नहीं मिलेंगे. अगर नहीं 18 मिलेंगे तो वो मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास में रख सकता है. फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, एटॉमिक नंबर इज 19, राइट. आर्गन के बाद पोटेशियम, एटॉमिक नंबर इज 19. अब अरेंजमेंट कैसे? तो पहले शेल में तो 2 रहेंगे डुप्लेट, सेकेंड शेल में 8 रहेंगे. अब थर्ड शेल में तुम एक्सपेक्ट करेंगे तो 18, पर 18 अगर करेंगे तो इसका तो एटॉमिक नंबर ही इतना है, मतलब बचेंगे कितने? वो देखो 2 + 8 10. अब बचे कितने? 9. पर ये थर्ड शेल में 9 रखने की जगह पर वो क्या रखेगा? 8, और 1 इलेक्ट्रॉन आगे के शेल में भेज देगा, सो दैट इट बिकम स्टेबल. ये स्टेबिलिटी का फॉर्मूला. मतलब 9 की जगह पर इसमें कितने रखे हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं. इसलिए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. भले बाहर के शेल में एक ही बचा है, पर ये वाली जो है ये. सो पोटेशियम 2, 8, 9 की जगह पर 8, 1 टू अचीव स्टेबिलिटी, राइट. तो ऐसा होता है, 1 बाय 1 अपन पढ़ते जाएंगे. मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास में है वो स्टेबल बन गया. तो इसी को बोला जाता है ऑक्टेट रूल. एवरी एटम ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी बाय ऑक्युपाइंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. जहां तक हो सके वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन. तुम बोलेंगे ये तो आउटर मोस्ट शेल नहीं है, वैलेंस शेल तो ये है. अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है इजीली. अगर दे दिया फिर ये चला जाने के बाद वैलेंस शेल में कितने बचेंगे? 8. तो ये ऐसा होता है. बेरिलियम देखो, हेलियम कितना है? 2, स्टेबिलिटी वाला है. लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3. एटॉमिक नंबर सबका ये एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर मतलब क्या? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. हेलियम में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2. लिथियम में कितने हैं? 3. पर तीनों एक ही पहले शेल में 3 है क्या? फर्स्ट शेल में कितने हैं? 2. सेकंड शेल में कितना है? 1. देन बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4. एटॉमिक नंबर इज 4. एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 4. उसमें से 2 फर्स्ट शेल में, 2 सेकंड शेल में. देन बेरिलियम, एटॉमिक बेरिलियम के बाद में बोरॉन, एटॉमिक नंबर इज 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है. वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो 2 and 3. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो फर्स्ट शेल कंसिस्ट ऑफ 2, सेकंड कंसिस्ट ऑफ 4. ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? यहाँ तक नहीं है, किसी का ही यहाँ तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. देन उसके बाद में देखते हैं नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 7 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो 2 and 5. देन ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इज 8, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो 2 और 6. देन फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 9 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? तो 2 and 7. फाइनली एटॉमिक नंबर 10, नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब अरेंजमेंट होगी 2 and 8. Now tell me which of them are stable? Which elements are stable among hydrogen to neon? So there are 2 stable elements. Can you find? First one is a helium because duplet is completed. पहला रूल जो है अपना डुप्लेट. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को? 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो उसके पास में है. दैट मींस इट इज स्टेबल. फर्स्ट शेल में 2 चाहिए. तुम बोलेंगे ये स्टेबल नहीं है क्या? नो, दिस इज नॉट स्टेबल, क्योंकि सेकंड शेल से कितने का क्राइटेरिया है? 8.
बस फर्स्ट शेल में ही अपने को 2 चाहिए, सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी नहीं आती है, इट मस्ट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन. सो हीलियम कंसिस्ट ऑफ 2 electron in its first shell, that means it is stable, and second one is a neon. Neon consists of 8 electron in its valence shell, outermost shell. That means these 2 elements are stable. Got it? Octet rule. So आज क्या पढ़े अपन ने, देखो एटम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े. जॉन डाल्टन 1809 observed that atmosphere consists of small dense and individual particles and they are called as atom. Then atom के 2 मेन पार्ट कौन से, तो न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट. न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स है. बाय इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई वेलोसिटी. देन ये पढ़े डिस्टोरी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन गोल्डस्टाइन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन्स जेम्स टेल्बी. देन फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने, नील बोर्स फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट. फॉर्मूला क्या था, तो 2 into n स्क्वायर. n क्या है, तो नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है. अप्लाई दैट वैल्यू, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देन ऑक्टेट रूल, मेन valence shell must contain 8 electrons so that it become stable like inert gases. ये inert गैस में आएगा, राइट. हीलियम है, ये भी इनर्ट में आता है, पर हीलियम का डुप्लीकेट ही कंप्लीट है. अदर देन हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो इनर्ट गैसेस है, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. ओके, दैट मींस दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट. और सभी इनके जैसे बनना चाहते हैं क्योंकि सारे इनर्ट गैसेस स्टेबल हैं, इसीलिए इनको नाम है इनर्ट, डज नॉट रिएक्ट, स्टेबल. और उनके जैसा सब बनना चाहते हैं. दिस इज ऑक्टेट रूल. गॉट इट? Next we will continue in next lecture. Thank you.